Good morning, SYBMM students. Subject Electronics Media. In this one, we are watching the first chapter, that is Inventions of Radio, how the radio or AIR, All India Radio, is developed all over the country, their role and their growths we are watching in the last lectures. Now we are watching the role of radio in education sectors. Now we are watching the role of radio in education sectors. Okay, so this is the second chapters in the first module. Okay, so first chapter is we are already heard, we are already listens, and it may be hope that you have to put all the PDF and all the informations in your notebook. I hope you have to write down all the notes in your notebook. If you are not started to write down it still now, you have to start as soon as possible, because the internal date of exam is already declared. Okay, it is not showing in your group, but first 2 units and first 2 module internal paper is taken as soon as possible. So whatever we are given the informations and whatever the videos we have to send, you have to write down in your notebook very properly. It is useful in your examinations. So first of all, we are watching the chapters radio technology, and in this one we are watching role in educations of radio. Okay, so there are 3 types of media. First one is print media, which is called oldest media or oldest form of the media. It is included the books, whatever we have to read, newspapers, magazines, journals and newsletters. These are the forms of print media. Second one is electronics media, which is we are watching in today's world more and more, that is televisions, radio, movies and many more. Okay, and last one is digital media, which is very fast and efficient media. Whatever the blogs is given on internet, whatever the forum is given on internet, and whatever the web portal is given on internet, that all are the parts of digital media. Okay, too many people are using this kind of 3 types of media method or categories. So it is very important to understand why the radio's information is given in the mass media. Okay, what is the education's or educational purpose to define this concept. Okay, so now we are watching the importance of radio. Okay, you know that the radio is playing very important role, that is called vital role in the field of communication. When we are talking and listening, so talking and listening both are the 2 parts of communications. Okay, so radio is given information to us and we are started to listening it, so therefore it is very important role in the field of communications. Okay, in the 1930 the first radio used in the education process. Okay, the radio is given so many ideas, message, information, knowledge. Okay, it's given the fresh tones, values एंड व्हीकल्स ऑफ द कम्युनिकेशन. जो भी हम बातें करते हैं, जो भी हम हमारे आइडियाज़, मैसेज, इन्फॉर्मेशन या नॉलेज शो आउट करते हैं, उनको अप्रोप्रिएट टोन्स में बताने के लिए और उनको अप्रोप्रिएट टोन्स से कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ओके, रेडियो एम्प्लीमेंट्स साउंड्स, इट हैज़ गॉट इमेंस potentiality
अगर आप रेडियोस के साउंड सुनेंगे या रेडियो से बताई हुई बातें सुनेंगे तो हर एक रेडियो जॉकीज़ की एक अपनी स्टाइल रहती है, रेडियो का एक अलग साउंड रहता है और रेडियो के साउंड से हर एक की पोटेंशियलिटी देखी जा सकती है। ओके, रेडियोज़ में ही आपको बहुत सारे वैल्यूज़ सीखने मिलते हैं। अगर आप रेडियो के बहुत सारे प्रोग्राम सुनोगे तो आपको बहुत सारी वैल्यूज़ सीखने मिलेगी। इसी के साथ आपकी इमेजिनेशंस भी पावरफुल होगी। जैसे आप ये रेडियो पे ट्रैफिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दी जाती है, देन स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है या म्यूज़िक की इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिससे आपकी इमेजिनेशंस स्ट्रॉन्ग हो सकती है, जिससे आपके वैल्यूज़ बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है। अभी एजुकेशंस में रेडियो का क्या इंपॉर्टेंस है या रोल्स है। फर्स्ट, रेडियो एक्सटेंड्स आवर एरिया ऑफ एक्विटेंस। सो देखो, बचपन से ही व्हेन वी आर चाइल्ड, ऑन दैट टाइम वी आर स्टार्टेड टू गेनिंग मोर एंड मोर नॉलेज। ओके, एंड whatever the knowledge is given the environment, that knowledge is not given the other one। जो हमें सराउंडिंग या आजू बाजू से जो नॉलेज मिलता है वो नॉलेज जैसा नॉलेज बच्चे को कोई नहीं दे पाता है या किसी एक चाइल्ड को नहीं दे पाता है। तो रेडियो हमें पूरे वर्ल्ड का नॉलेज देता है, यानी हमारे आजू बाजू के सारे इन्वायरमेंट का नॉलेज हमें रेडियो से मिलता है। इसका मतलब रेडियो से हम लोग एक लिमिट तक नहीं रहते, हम हमारा एक्विटेंस बढ़ाते हैं। हमारे होल सराउंडिंग या होल इन्वायरमेंट या होल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशंस हमें रेडियो से मिल सकती है। सेकेंड, रेडियो एक टाइप का क्लासरूम होता है जिसमें आप डिस्क्रिप्शन शो आपको बताया जाता है, आपको पोएम्स या नरेशंस बताया जाता है, ड्रामा करके दिखाया जा सकता है, ओरिजिनल वॉइस होता है इसमें और नेचुरल साउंड्स भी दिखाए जा सकते हैं। जैसे आपने बचपन में आपके स्कूलों में रेडियो सुनाया जाता था, ये रेडियो सुनकर आप बहुत सारे नेचुरल साउंड सुन सकते हो। एनिमल्स की आवाज़ कैसे होते हैं, बैक्टीरियाज़ की आवाज़ कैसे होते हैं, बहुत सारे पंछियों की आवाज़ कैसे होते हैं। तो एक टाइप से आप नेचुरल साउंड्स उसमें सुन सकते हो, वो ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हो। सो चाइल्ड्स अपने आजू बाजू की आवाज़ सुन सकता है, जिससे उसके आजू बाजू के सराउंडिंग्स से वो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज ले सकता है। नेचुरल साउंड होने के कारण ओरिजिनल वॉइस सुन सकता है, नेचुरल साउंड सुन सकता है। उसी के साथ उसमें बहुत सारी उसको स्टोरीज़ बताई जाती है रेडियोज़ पे, जिससे वो ड्रामा कर सकता है, पोएम सुन सकता है, डिस्क्रिप्शंस कर सकता है। ओके, रेडियो लिसनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो लिसनर्स है उनको इससे पीछे क्या हुआ यानी बैकवर्ड की इन्फॉर्मेशन दे सकता है और आगे क्या होने वाला है फॉरवर्ड की इन्फॉर्मेशन भी देता है। ओके, नेक्स्ट इट्स ब्रिंग द पीपल टू रेयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, अभी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ होती है, बहुत सारे फेलियर पर्सनैलिटीज़ होती है। इनका सोसाइटी के हर एक लाइफ में या हर एक इवेंट में कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल होता है सिर्फ रेडियो पे। ओके, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस लिखने वाले बहुत सारे पुराने पर्सनैलिटीज़ है। ओके, सो बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका कंट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस, और ये इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो होती है जो अभी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ऐसी पर्सनैलिटीज़ की इन्फॉर्मेशंस आपको रेडियो से कलेक्ट हो सकती है। ओके ओके, अभी रेडियो सिर्फ सुनने का पार्ट नहीं है, तो रेडियो से स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट है रेडियो से आप बहुत सारे नेशनल्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स सुन सकते हो। ओके, और स्टूडेंट्स को सुना सकते हो। बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे इंडिया और चाइना का रिलेशंस है, पाकिस्तान की फ़िलहाल सिचुएशंस है, पूरे वर्ल्ड की सिचुएशंस, अमेरिका की कोरोना की सिचुएशंस,
इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में बता सकते हो, ओके, या MPL है, IPL है, इनके बारे में बता सकते हो। तो ये बहुत सारे नेशनल्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में आप रेडियो से इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ओके। नेक्स्ट है रेडियो फ्रेश इन्फॉर्मेशन देता है, ओके। वो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की तरह पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, जैसे कल क्या हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपको आज मिलती है, राइट। लेकिन रेडियो जो है वो अब भी क्या हुआ है पूरे वर्ल्ड में, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी के अभी देता है। जैसे अभी सैटेलाइट लॉन्च हुआ तो उसकी तुरंत फ्रेश इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि वो कहाँ से लॉन्च हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या थी, कितने हर्ट्ज़ का था, उनका वेट कितना था, तो तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यही अगर आपको इन्फॉर्मेशन सुननी है तो न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में नेक्स्ट डे बताई जाएगी। तो रेडियो तुरंत इन्फॉर्मेशन सेंड करने वाला मेथड है, ओके। अभी रेडियो पे सिर्फ आपको वॉइस या साउंड सुनाई देता है, ओके, जिससे अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। जैसे जैसे आप रेडियो सुनते जाओगे वैसे वैसे आप में आपके दिमाग में बहुत सारे इमेजिनेशंस आना स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर आप एक स्टोरी सुन रहे हो तो पूरा स्टोरी का एक ड्रामेटाइजेशंस या पूरा पिक्चर्स आपके सामने आता है, राइट। तो ये सिर्फ सुनने के बाद ही होता है। इसका मतलब आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और आपका इमेजिनेशंस भी बढ़ता है, ओके। नेक्स्ट, बहुत बार टीचर्स क्लासरूम में जो सिखाते हैं या बताते हैं तो स्टूडेंट्स का उसकी तरफ ध्यान नहीं होता है, बट क्योंकि बुक्स में उसका उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। वही बातें अगर वो रेडियो से सुनेगा तो भले उसका ध्यान ना हो बुक्स में, उसकी आई साइड काम ना करती हो, लेकिन वो कान से सुन रहा है, यानी वो प्रॉपर लिसनर बन रहा है। ये बहुत यूनिक बात होती है, ओके। नेक्स्ट है, जैसे अभी हमने सुना कि रेडियो से आपको फ्रेश इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसी तरह टेक्स्ट बुक में आप सालों साल वही इन्फॉर्मेशन कैरी करते हो, राइट। लेकिन जब आप रेडियो में इन्फॉर्मेशन सुनते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज, या टीचर्स हो तो टीचर्स को एक्स्ट्रा नॉलेज रेडियो से बच्चों को वो एग्जीक्यूट कर सकता है, सुना सकता है, ओके। अभी अगर आप रेडियो सुनते हो तो रेडियो में एक शुक्ल नाम का एक रेडियो चैनल से या रेडियो के म्यूज़िकल आर्ट्स है, जिसमें आपको आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होती है। बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड आप लोग गलत बोलते हो या बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स आप गलत बोलते हो, तो आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव करने के लिए रेडियो इस्तेमाल होता है। पंक्चुएशंस या प्रोनाउंसिएशंस, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस गलत आते हैं, तो वो प्रॉपरली बताने के लिए रेडियो इम्पोर्टेंस होता है। और बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज या स्पीच में जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कैसे बताना है ये मालूम नहीं रहता है, तो आप रेडियो सुनोगे तो आपको बताया चलेगा कि आप स्पीच कैसे देना है, ओके। सो ये है रेडियो के कुछ इम्पोर्टेंस हम एजुकेशनल पर्पस से, ओके। अभी रेडियो से कौन कौन से एजुकेशनल प्रोजेक्ट शो आउट किए जाते हैं इंडिया में, ये भी वहाँ पे दिखाया गया है। 1937 से हमने रेडियो स्कूलों में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। फर्स्ट है स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट, ओके। अभी हम लोग देखेंगे कि रेडियो एजुकेशनल सेक्टर्स में कैसे इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट है स्कूल ब्रॉडकास्टिंग प्रोजेक्ट। 1937 में हमने पहली बार स्कूलों में रेडियो का इस्तेमाल किया था। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, इन जगहों पर रेडियो का ब्रॉडकास्ट स्कूलों में हुआ था। इसमें कंपलसरी जो आपका करिकुलम है या आपके बुक्स में जो दिया है वो नहीं बताया जाता था, तो अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इसमें शो आउट की जाती थी, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि ये करिकुलम या आपका करिकुलम जो मतलब आपको बुक्स में जो दिया है वो करिकुलम, यानी आपकी बुक्स में जो आपको पढ़ने को दिया है वो सिलेबस और एक्चुअल्स रेडियो में शोट किया जाने वाला सिलेबस वो मिसमैच होता था कहीं पे, क्योंकि जो रेडियो में बताया गया है और जो आपका एक्चुअल करिकुलम्स है वो मैच ना होने के कारण
ये ब्रॉडकास्टिंग करना, स्कूलों में ब्रॉडकास्टिंग करना रेडियोज़ को थोड़ा मुश्किल हो गया। ओके, क्योंकि क्या है, हमारे ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह पर सेम करिकुलम नहीं है, मतलब पढ़ाई सेम नहीं है, तो उसके कारण एक जैसा मैसेज रेडियो पे देना पॉसिबल नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट है अडल्ट एजुकेशन एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स। अभी ये भी रेडियो पे शो आउट किया जाता है। अडल्ट यानी क्या है, जो लोग बचपन में कोई रीजंस की वजह से एजुकेशंस नहीं कंप्लीट कर पाए और हु आर नॉट प्रीफर टू गिवन एजुकेशंस फॉर सम देयर पर्सनल रीजंस, सो उन स्टूडेंट्स के लिए अडल्ट एजुकेशंस प्रोग्राम्स यहाँ पे डेवलप किया गया। 1956 को ये प्रोग्राम्स पुणे में 144 विलेजेस में शो आउट किया गया। ओके, यूनेस्को ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। यूनो आपको मालूम है, यूनो का एक डिपार्टमेंट है एजुकेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। इन्होंने रेडियो फोरम प्रोग्राम बनाया था, जो अनपढ़ लोग हैं गाँव में, उन लोगों को अडल्ट एजुकेशंस देने के लिए, और उसी के साथ बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोग्राम रन करने के लिए रेडियो पे ये प्रोग्राम बनाया गया था। तो आपको दो प्रोग्राम्स तो पता चले। पहला है स्कूल ब्रॉडकास्टिंग प्रोजेक्ट, 1937 में बनाया गया था, स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन जगहों पर ये ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसमें जो आपके करिकुलम है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी या स्ट्रिक्ट करिकुलम नहीं था, तो हर एक जगह पर करिकुलम अलग अलग होने की वजह से कॉमन करिकुलम या कॉमन सिलेबस ना होने के कारण रेडियो पे जो प्रोग्राम्स बताए जाते थे वो ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सका, क्योंकि आप हर जगह पर अगर एजुकेशन अलग अलग है तो आप जो रेडियो पे बता रहे हो वो प्रॉपर करिकुलम नहीं होता था, जिसके कारण ये प्रोग्राम फेल हुआ। नेक्स्ट है अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, पुणे में ये लॉन्च किया था 1956 को। 144 गांव में ये पहुंचाया गया था। ये प्रोग्राम्स यूनेस्को के अंडर रन किया गया था, जिसको रेडियो फोरम प्रोजेक्ट कहा जाता है। ओके, इसके साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक की इन्फॉर्मेशन इसमें रेडियो पे सुनाई गई थी। नेक्स्ट प्रोग्राम है जो एजुकेशनल से रिलेटेड है, लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने और एयर यानी ऑल इंडिया रेडियो ने मिलकर ये प्रोग्राम किया था, लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम 1979 टू 18 में। इसका एम था कि हिंदी लैंग्वेज को जयपुर और अजमेर जैसे डिस्ट्रिक्ट के में और इस्टेब्लिश करना। 500 प्राइमरी स्कूलों में ये प्रोग्राम शो आउट किया गया था या बताया गया था या सुनाया गया था। ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ था, इसके कारण मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी ये प्रोग्राम बाद में शो आउट किया था या लॉन्च किया गया था। ओके, मतलब हमारी लैंग्वेज को सिखाने के लिए ये प्रोग्राम इस्तेमाल किया गया था। राजस्थान में फर्स्ट टाइम राजस्थान गवर्नमेंट ने 500 स्कूलों में ये प्रोग्राम पहले सुनाया गया था। ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था, इसके कारण लैंग्वेज लर्निंग का प्रोग्राम सक्सेसफुल होने के कारण मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में भी ये प्रोग्राम बाद में सुनाया गया था। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट। 1965 को हायर एजुकेशंस में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसमें दो टाइप्स के प्रोग्राम थे, फर्स्ट है जनरल और दूसरा है एनरिचमेंट। आपके यूनिवर्सिटी से जो भी टॉपिक है, जैसे आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी है तो मुंबई यूनिवर्सिटी के जो भी टॉपिक्स है या मुंबई यूनिवर्सिटी में FY, SY, TY में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स ये प्रोग्राम में सुनाए जाते हैं। और इनरिच प्रोग्राम्स में जो करस्पॉन्डेंस बच्चे सीखते हैं, मतलब जो बच्चे स्कूलों में नहीं, कॉलेजेस में नहीं जा पाते, जॉब करते या कुछ और चीज़ें करते जिसके कारण वो जॉब कॉलेज नहीं अटेंड करते, उनके लिए
करस्पॉन्डेंस एजुकेशंस का प्रोग्राम रेडियो के अंदर बनाया गया था। ओके, ये करस्पॉन्डेंस स्टडीज़ करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम्स लॉन्च किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका इस्तेमाल करती है। बहुत सारे जो करस्पॉन्डेंस इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज जिनको सीखना है उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम्स रेडियो पे शो आउट किया जाता है। ओनली द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज़ यूजिंग दिस प्रोग्राम टू टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और एयर इंडिया, इन्होंने मिलकर मुंबई, हैदराबाद, शिलोंग, इन जगहों पर ये प्रोग्राम 1992 को लॉन्च किया गया था। जितने सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले या करस्पॉन्डेंस पढ़ने वाले, उन सब बच्चों के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इग्नू ने। ओके, शिलोंग जो आपको मालूम है, शिलोंग ये नागालैंड की जो कैपिटल है, सॉरी नागालैंड नहीं, मिज़ोरम की जो कैपिटल है शिलोंग, यहाँ पे ये प्रोग्राम फर्स्ट स्टार्ट किया गया, फिर बाद में वो डिसकंटिन्यू किया गया। लेकिन मुंबई और हैदराबाद इस जगह पर ये प्रोग्राम आज भी लॉन्च होता है और आप रेडियो पे इग्नू से हुई लेक्चर्स सुन सकते हो। नेक्स्ट है ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी 2001 में स्टार्ट किया गया प्रोग्राम से। बहुत सारी ओपन एंड कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोग्राम लॉन्च करती है। ओके, इसमें मास मीडिया एंड एजुकेशनल एंड एम्पावरमेंट इससे रिलेटेड प्रोग्राम सुनाए जाते हैं। ये प्रोग्राम्स के लिए इग्नू, NCERT, UGC और IIT इनसे रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स इस पे सुनाए जाते हैं। ओके, इसमें वुमेंस एम्पावरमेंट पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कंज्यूमर्स राइट्स पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ह्यूमन राइट की स्टडी होती है, साइंस एंड एजुकेशंस की स्टडी होती है। ओके, तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारा रेडियो से लॉन्च किया जाता है। स्कूल ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स, अडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम, लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स और इग्नू से ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स है। ज्ञानवाणी का ये चैनल्स है, ये सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स है। ओके, सो थैंक यू। वॉट एवर वी आर टीचिंग, जस्ट रीड इट वेरी प्रॉपरली, just write down all information in your notebook. It is very useful for you for the examinations. Okay, thank you students.